Hello everyone, this is Katie here. In this video, we are going to learn about the English literature chapter, The Jackal and the Iguana. This is the second part of the chapter. The first half of the story I have already told you in the first part of the video. Now I am going to explain you and narrate you the second part, the second half of the story. So pay attention, watch the video from beginning to end for better understanding. So happy digital learning. Have a nice day. So let's begin the second part of the story. So what is the story we have seen? What had happened in the first part? So in the first part, what we have seen, there was a jackal who was half starved and he was looking for the food, and while passing through a village he had found a pair of shoes in the gutter. He thought of an idea. When he could not eat those tough shoes, he got an idea. He hung them on his ears and he has collected some bones of the animals along the pond, and with that bone, he had gathered all those bones. He stuck together and he had built a platform and plastering it with the mud, and in a dignified manner he sat over it, and he thought himself to be a great importance like a king or a prince, and whichever animal used to come to drink to the pond, the water, he used to stop them and tell them to repeat some lines which he has composed himself. So the animals didn't want to argue with him. They did what he says and they go away. Even the tiger did that. One day on that place, an iguana had come, a big lizard iguana, and the jackal said the same thing to it also. Hearing this, the jackal was very thirsty. He must have some idea inside him. That is why first he puffed. He has exclaimed, "Puff, puff, puff." Then he said, "Mercy on us, how dry my throat is. Mightn't I have just a wee of sip of water first, and then I could do justice to your admirable lines. At present, I am a hoarse as a crow." He said this. Let's see what happens next. The story so far is still here. तो in the first part, पहले भाग में हम लोगों ने देखा कि एक सियार जो आधा पेट भूखा था और उसे बड़ी भूख लगी थी, वो एक गांव में ढुकता है चोरी चुपके। उसे एक गांव में गटर में यानी नाले में एक जोड़ी जूती मिलती है उसे चमड़े की। वो उसे खाने की कोशिश करता है पर वो बहुत सख्त होता है, तो वो सोचता है कि इसका दूसरा प्रयोग करेंगे, इसका दूसरा इस्तेमाल करेंगे। वो क्या करता है, उससे एक विचार सोचता है। वो क्या करता है, उस जूते को अपने कान पर, दोनों कानों पर पहन लेता है। एक जोड़ी जूते को अपने कान पर पहन लेता है और वो तालाब के किनारे से जानवरों का बहुत सारा हड्डी इकट्ठा करता है और उस हड्डियों से वो एक सिंहासन जैसा एक प्लेटफॉर्म बनाता है
और उस सिंहासन को वो मिट्टी से लेप देता है और सिंहासन के ऊपर बैठ जाता है राजा की तरह। और उस तालाब पे जो भी जानवर पानी पीने आते थे उसे पानी पीने से मना करता था और कहता था कि उसकी बनाई हुई पंक्ति जो है उसके आदर सत्कार में पहले वो पंक्ति बोले और उसके बाद ही वो पानी पीकर जाए। सारे जानवर इतने प्यासे थे, इतने जल्दबाजी में रहते थे कि सियार को कुछ नहीं बोलते थे, उससे मुंह लगाना नहीं चाहते थे, उससे वाद विवाद करना नहीं चाहते थे। इसलिए सियार जो भी कहता था वो उसकी बात सुनकर चुपचाप पानी पीकर चले जाते थे। जंगल का राजा शेर ने भी ऐसा किया, क्योंकि शेर के लिए ये बस एक मजाक थी। इसीलिए शेर ने भी उसके साथ, सियार के साथ वाद विवाद करना ठीक नहीं समझा और वो भी पानी पीकर चुपचाप चला गया। इन्हीं सब कारणों से सियार को बहुत घमंड हो गया और वो अपने आप को श्रेष्ठ और बहुत महान समझने लगा। फिर एक दिन एक बड़ी छिपकली पानी पीने आती है उसी तालाब के किनारे, और उसे भी सियार वही कहता है कि तुम बिना मेरा आदर सत्कार किए और मेरी पंक्तियाँ जो मैंने लिखा है बोले, तुम इस तालाब का पानी नहीं पी सकते, इस तालाब का पानी नहीं पी सकते। लेकिन वो छिपकली बोलता है कि मेरा गला बहुत सूख रहा है, मैं अभी आपके आदर सत्कार में कुछ नहीं बोल पाऊंगा, बस एक सिप यानी एक घुट पानी पी लूं अगर, तभी मैं आपकी पंक्तियों को बोल पाऊंगा। तो कहानी यहाँ तक इतनी ही थी। अब देखते हैं आगे। सो हियर द स्टोरी प्रॉपरली, पे अटेंशन एंड लिसन केयरफुली what I explain and watch the video continuously. By all means, replied the jackal with a smirk. Smirk means चुपके से हंसते हुए, in a teasing manner. By all means, replied the jackal with a smirk, mean with a smile, teasing smile. I flatter myself the words are good, especially when well recited. इग्वाना वो छिपकली कहता है कि मुस्कुराते हुए वो कहता है कि फ्लैटर करना मतलब किसी की झूठी तारीफ करना के लिए ये वर्स, ये जो लाइनिंग आपने लिखा है, ये जो पंक्ति लिखा है वो अच्छा है, पर अगर सही से बोला जाए तो। So the iguana nose down in the water, drank away until the jackal began to think he would never leave off, and was quite taken aback when he finally came to an end of his draught and began to move away. और ये कहकर कि अगर इस पंक्तियों को ठीक से बोला जाए तो अच्छा है, ये कहकर वो छिपकली पूरे मन भर कर पानी पीने लगा जब तक उसे सियार ने कोई रोक टोक नहीं किया। वो पेट भर कर, मन भर कर पानी पीने लगा तालाब से और पीकर वो चलता बना। और जैसे ही वो जा रहा था and as he went after drinking the water from the pond, the jackal said, "Hi, hi!" cried the jackal, recovering his presence of mind. वो अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड माने अपने सोच में नहीं था, वो किसी ध्यान में मग्न था। जब उसे होश आया कि छिपकली ने पानी पी चुका है और वो उसके आदर सत्कार दिए बिना ही विदाउट पेइंग होमेज ही इज गोइंग, तब उसने कहा कि हाय हाय, क्राइड द जैकल, रिकवरिंग हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड, स्टॉप अ बिट एंड से, सिल्वर is his days plastered over with gold. In his ears are jewels, some prince I must behold. आज जैसे ही पानी पीकर चलते बना जा रहा था
छिपकली। तब इस सियार ने कहा, उसे होश आया, वो कुछ सोच में खोया हुआ था, कि तुम बिना बोले हुए, मेरा आदर सत्कार ना किए हुए, मेरी पंक्तियों को ना बोलकर तुम कैसे जा रहे हो? बोलो ये शब्द, रिपीट करो, दोहराओ जो मैं पंक्तियां बोल रहा हूं। Dear me, replied the iguana politely. I was very near forgetting. Let me see, I must try my voice first. Do, re, mi, fa, so, la, ti. That is right. Now how does it run? ये छिपकली के दिमाग में भी कुछ चल रहा था। वह बहुत चालाक था। शायद उसने सियार को सबक सिखाने की ठान ली थी। इसी कारण उसने जवाब दिया सियार को बड़े अदब से, ओह हाँ, मैं भूल गया आपका आदर सत्कार करना। ठीक है, मैं बोलता हूं। और उसने ये कहकर उसने ऐसा प्रतीत किया, ऐसा दिखाया कि उसके गले से आवाज बहुत मुश्किल से निकल रही है, और उसने कहा, दो, रे, मी, फा, सो, ला, टी। और ये कहकर उसने कहा, ये ठीक है, चलेगा ऐसा, ये कहना चलेगा? छिपकली ने कहा, सिल्वर इज हिज डेज, प्लास्टर्ड ओवर विद गोल्ड, इन हिज ईयर्स आर जेवल्स, सम प्रिंस आई मस्ट behold, रिपीटेड द जैकल। मगर जैकल ने कहा, ना, ऐसे नहीं, जैसा मैं कहता हूं वैसे कहो। सिल्वर इज हिज डेज, plastered over with gold, in his ears are jewels, some prince I must behold. और सियार ने ये रिपीट किया उसके सामने और कहा कि इस तरह बोलो। Not observing that the lizard was carefully moving farther and farther. पर छिपकली पे इसका कोई असर ना हुआ। सियार कहता रहा और छिपकली चुपचाप और दूर वो जाता रहा, चलता रहा। Exactly so, said the iguana. I think I could say that. Oh, छिपकली ने कहा, ऐसा ही कहना है क्या? ठीक है, मैं कोशिश करता हूं। And then he sang out at the top of his voice. और फिर उसने बड़े जोर से अपने आवाज को ऊंची करके कहा, Bones made up his days, with mud it's plastered over, old shoes are his eardrops, a jackal, nothing more. छिपकली ने असलियत समझ लिया। वो बाकी जानवरों की तरह ना था। वो चाहता था कि सियार को वास्तविकता दिखाए, सच्चाई दिखाए। बाकी जानवरों की तरह वो पानी पीकर सिर्फ चल नहीं गया, पर उसने पलटकर सियार को जवाब भी दिया और उसने कहा कि सिंहासन नहीं। उसने जो कहा था, सियार ने जो पंक्ति लिखी थी, पंक्ति की, वो उस पंक्तियों को किसी दूसरे तरीके से, उल्टे तरह से कहा छिपकली ने। उसने कहा, बोन्स मेड ऑफ हिज डेज, सिंहासन नहीं, ये हड्डियों का बना है जिसके ऊपर सोने की पानी नहीं बल्कि मिट्टी का लेप है। ओल्ड शूज आर हिज ईयर ड्रॉप्स, फटे हुए जूते, पुराने जूते कान पर लटक रहे हैं। अ जैकल नथिंग मोर, यह कोई और नहीं बस एक सियार है। ये कहा छिपकली ने, जो भी कहा था सच कहा था, क्योंकि उसे सबक सिखाना था सियार को। And turning around, he bolted for his hole as hard as he could. Bolted mean ran away suddenly. Bolted का मतलब होता है तेजी से दौड़ना या भागना। और ये कहकर इग्वाना अपनी गुफा की तरफ, जहां वो रहता था, बड़े तेज से अपनी गुफा की तरफ भागने लगा, जाने लगा।
The jackal could scarcely believe his ears and sat dumb with astonishment. जैकल छिपकली की ये बात सुनकर बर्दाश्त नहीं कर सका, वो स्तंभ रह गया, वो होश हवास खो बैठा, उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो खामोश एक बेजुबान सा बैठ गया, हताश होकर कि ये वो क्या सुन रहा है। पर जो भी छिपकली ने कहा था वो सच था। ये सच जो बाकी जानवरों ने नहीं कहा, सिर्फ छिपकली ने कहा। Then rage lending him wings, he flew after the lizard, who despite his short legs and scanty breath scuttled away at a great speed. रेज मतलब गुस्से, बहुत ही ज्यादा गुस्सा। स्कैंटी मतलब जो सफिशिएंट ना हो, जो व्याप्त ना हो, जो काफी ना हो। स्कटल मतलब रैन हरिडली, तेजी से दौड़ना। तो ये सुनकर सियार को अपने कान पर विश्वास ना रहा, उसे क्रोध आ गया और उसने गुस्से में आकर छिपकली पर, इग्वाना पर हमला कर दिया। वो उसकी तरफ लपका, तेजी से दौड़ा, लेकिन इग्वाना, छिपकली, अपने छोटे पांव से हड़हापते हुए जल्दी जल्दी अपने गुफा की ओर भागने लगा और गुस्से में उसे हमला और हानि पहुंचाना की बात सोचकर शियार उसके पीछे आया, लपका उसकी तरफ। It was a close race, however, for just as he popped into his hole, the jackal caught him by the tail and held on. Then the lizard felt sure that his tail would come off, and he felt as if his front teeth would come out. Still not an inch did either budge, one way or the other, and there they might have remained till the present day, had not the iguana called out in his sweetest tones, "Friend, I give in, just leave hold of my tail, will you? Then I can turn around and come out." So the jackal let go, and the tail disappeared up the hole in a twinkling. So the jackal let go, and the tail disappeared up the hole in a twinkling, while all the reward the jackal got for digging away until his nails were nearly worn out was hearing the iguana sing softly. Bones made up his days with mud it's plastered over, old shoes are his eardrops, a jackal nothing more. आज जैसे ही इग्वाना, वो छिपकली, अपने गुफा में धुक रहा था, उसी वक्त सियार ने उसके दुम को पकड़ लिया और तानने लगा। छिपकली को पता था कि उसका दुम तो सियार छोड़ेगा नहीं, और मैं बता दूं कि जितनी भी छिपकली हैं, जितने भी लीजर्ड हैं, वो लोग अपना दुम छोड़ते हैं, वो अपना दुम गिरा सकते हैं और एक नया दुम पैदा हो सकता है। ठीक इग्वाना ने यही किया। उसने कहा बहाना से कि जैकल, तुम मुझे, जैकल मेरे दोस्त, तुम दुम थोड़ा सा छोड़ो और मैं घूम कर बाहर निकलता हूं। तुम यही चाहते हो मैं बाहर आऊं, मैं आता हूं। उसने बेवकूफ बना दिया सियार को, जो सियार स्वयं को बहुत चालाक समझता था। उसने उसे बुद्धू बना दिया
उसने कहा प्यार से मीठे स्वर में कि सियार भाई, सियार दोस्त, तुम मेरा दुम छोड़ो, मैं घूम कर बाहर निकलता हूँ। और सियार ने जैसे उसके दुम को छोड़ा, सियार भाग गया और अपने गुफा के और अंदर चल गया और मीठा गाना गाने लगा। Bones made up his days with mud is plastered o'er. All shoes are his eardrops, a jackal nothing more. और अपनी बुद्धिमानी से छिपकली बच भी गया और इस तरह उसने अपने प्राण बचाए सियार से। तो यहाँ कहानी ख़त्म होता है। The story is written by Flora Annie Steele. तो इस कहानी से क्या सबक मिलता है कि अगर कोई किसी को बहुत ज़्यादा घमंड आ जाए तो ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम उसे सच्चाई दिखाएं और उसके घमंड को तोड़ें। What lesson do we get from this story? कि if anybody is living in the world of lie and illusion, we should take the responsibility of showing him or her the truth, the fact, and bring him or her. I hope you have understood the whole story. So I hope आशा है आपको पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। So keep on watching my video. आशा है आप सभी को ये कहानी पसंद आई होगी। Happy digital learning. Goodbye. Okay, so keep on watching my video. Enjoy the video. Happy digital learning. Goodbye.